हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। मैं डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे और वो है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो नाउ व्हाट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हाउ द मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड? सो फर्स्ट, व्हेन the impulses reaches the presynaptic membrane, we all know that बेटा this is the neuron, जैसे हमने पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज द न्यूरॉन, it's a presynaptic membrane and this is the postsynaptic membrane. So now when impulses reaches the presynaptic membrane, जैसे ही impulses presynaptic membrane पे पहुंचेंगे, what happen? The synaptic vesicles, with the help of exocytosis, they release the neurotransmitter in the synaptic cleft. They release neurotransmitter, and which neurotransmitter? Acetylcholine and synaptic cleft. So first, when the impulses reaches the presynaptic membrane, it releases the neurotransmitter acetylcholine in the synaptic cleft. Now this acetylcholine will bind to the postsynaptic receptor. Now this acetylcholine binds with postsynaptic receptor and generate the action potential in muscle. So look at here beta, the first step is when the impulses reaches the presynaptic membrane, जैसे impulses presynaptic membrane तक पहुंचेंगे, what happen? The neurotransmitter, which neurotransmitter? Acetylcholine is released in the synaptic cleft, and this acetylcholine will bind to the postsynaptic receptor and it generate the action potential in the muscles. Now when the muscles generate the action potential, the calcium channel open and the calcium is enter into the muscles. So now the next step is so now the calcium channel open and increase the intracellular calcium level, and also the excess calcium release from sarcoplasmic reticulum. So now what happen? When the impulses or the action potential generate in the muscles, the calcium channel get open and they enter the calcium in the cell and it intracellular calcium level is increased. Once the intracellular calcium level is increased, the excess calcium release from sarcoplasmic reticulum. The excess calcium release from the sarcoplasmic reticulum. Now the physiology of muscle contraction will begins. So now what happens? This calcium will bind to the TPCA. Here it is the TPCA. This is the TPCA. So now calcium will bind to the TPCA. Calcium will bind to the TPCA. So now what happened? This calcium
will bind with troponin. The calcium will bind to the troponin and the myosin head hydrolyze the ATP, and ATP is break down and convert into ATP plus PI. So now calcium will bind with the troponin and the ATPase enzyme get activated and the myosin head hydrolyze the ATP and break down into ADP plus PI. So now what happened? The excess calcium will bind to the troponin and which enzyme? ATPase enzyme get activated, and this ATPase enzyme hydrolyze the ATP and convert into ADP plus PI. Okay. Now at the same time, look at here beta. Okay, this is the actin. This black color is actin, and हमने बेटा आगे के वीडियो में देखा था एक्टिन हैज मायोसिन बाइंडिंग साइट. एक्टिन में क्या होता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है. पर इन अ रेस्टिंग कंडीशन में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है वो मास्किंग होता है. मास्किंग मतलब छुपा हुआ होता है. किससे? ट्रोपोमायोसिन से. ये ग्रीन कलर का जो है, और यहाँ से बेटा ये यहाँ पर बाइंडिंग साइट होता है, और वो दोनों बाइंडिंग साइट क्या है बेटा? छुपा हुआ है. नाउ एट द सेम टाइम जैसे ही बेटा कैल्शियम यहाँ बाइंड होंगे, द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन गेट ओपन. ओके, यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूं. एट द सेम टाइम मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन गेट ओपन. अब क्या होगा बेटा? जो मायोसिन का एक्टिन का जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा वो ओपन हो जाएगा. और साथ साथ में क्या हुआ? द ATP get hydrolyzed and release the energy. So what happened now? The head of the myosin, this is the head of the myosin, will bind to the myosin binding site of the actin. Okay, now the head of the myosin will bind with the actin. So now what happened? The next step is the myosin head will bind with the actin and form the cross bridge Okay, so now what happened beta? कि at the same time जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा एक्टिन का वो ओपन हो जाएगा, और जो मायोसिन का हेड होगा, द मायोसिन हेड विल बाइंड टू द एक्टिन एंड इट फॉर्म द क्रॉस ब्रिज. सिंपली बेटा मैं आपको बताऊं, सपोज दिस इज द एक्टिन फिलामेंट, सोचो. ओके, और उसके ऊपर बेटा ट्रोपोमायोसिन बाइंड है. जैसे ही इसके साथ ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ तो जो ट्रोपोमायोसिन होगा वो ट्विस्ट हो जाएगा. ट्रोपोमायोसिन क्या होगा? ट्विस्ट. देखो पहले यहाँ ऐसे बाइंडिंग था, फिर ये साइट सब ओपन कर दिए उसने, तो अभी एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गया. अब जैसे ही एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट वो ओपन हुआ तो ये क्या है बेटा? मायोसिन का हेड, ये बाइंड हो गया एक्टिन के साथ और उसने क्रॉस ब्रिज बना लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दिस मायोसिन पुशेस द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर. वो क्या करेगा बेटा? टूवर्ड्स द सेंटर उसको पुश करेगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, so now the myosin pushes the actin filament at the center and the I band get shortened. So look at here, this is the A band, this is the A band, we all know that this is the A band, right? And this one is the I band, this is also the I band. Now
व्हेन द मायोसिन, दिस ब्लू कलर इज द मायोसिन, तो मायोसिन विल बाइंड टू द एक्टिन फिलामेंट और वो क्या करेंगे, दे एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ मूव करते जाएंगे। क्या करेंगे, सेंटर की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ये अंदर आएंगे बेटा थोड़े थोड़े ऐसे, राइट, ये अंदर आ गए थोड़े थोड़े, ओके। और ज्यादा नजदीक आएंगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐसे बाइंड हो जाएंगे। तो देखो अभी यहां पर आई बैंड इतना था, यहां पर आई बैंड कितना हो गया, छोटा हो गया, यहां से यहां तक हो गया, ये पहले यहां तक था, फिर यहां से यहां तक हो गया। तो आई बैंड का साइज देखो बेटा छोटा होता जा रहा है, पर ए बैंड देखो बेटा, ए बैंड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मींस ए बैंड कोई चेंज नहीं होगा, बट आई बैंड गेट शॉर्टन, ओके। बट सॉरी यहां पर, ओके, सो मायोसिन pushes the actin filaments at the center and the I band get shortened, okay, and the muscles get contracted, and the muscles get contracted. Now what happened? Now the ATP is again synthesized. Again ATP will be synthesized. So myosins rotate the actin centrally. Now again the ATP will synthesize and it is bind to the head of the myosin. Now again the ATP will be synthesized. ATP will be synthesized and the ATP bind with the head of myosin, and again the head of myosin detached from एक्टिन. सो अगेन बेटा क्या होगा कि नाउ मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब क्या होगा, जो मायोसिन के हेड पे वापस एटीपी बाइंड हो जाएगा, द एटीपी विल बाइंड विद द हेड ऑफ द मायोसिन, और जैसे ही बेटा वापस एटीपी बाइंड होगा तो यहां पर देखो ये बाइंडिंग था दोनों जगह, और ये बाइंडिंग वापस यहां से रिलीज हो जाएगा. सो द मायोसिन हेड डिटेच फ्रॉम द एक्टिन एंड the muscles, means the actin is again place the normally. यानी देखो बेटा सिंपली ये एक बार बाइंड हुआ था और इसको सेंटरली पुश किया, अब यहां से वो निकल जाएगा, तब वापस एक्टिन अपनी जगह वापस आ जाएगा, ओके, एंड मसल्स गेट रिलैक्स, क्लियर बेटा, सबको यहां तक पता चला है? तो आइए ये फिगर में बेटा मैं आपको ये सारी चीजें वापस एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं. कितनी मिनट बाकी है? ओके, सो बेटा देखिए वापस फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये करूं त्यारे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. आइए बेटा देखिए फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. इंपल्सेस जैसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलेंगे, वंस द इंपल्सेस पासेस द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और रीचेस द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तुरंत क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. दिस न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड टू दी पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, और वो क्या करेंगे बेटा, इंपल्सेस मसल्स को दे देंगे. अब जैसे ही मसल्स में इंपल्सेस आएंगे तो कैल्शियम चैनल ओपन होगा मसल में. अब मसल में कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे हैं तो कैल्शियम मसल्स में बढ़ेगा, तो ज्यादा कैल्शियम कहां से रिलीज होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से रिलीज होगा. अब ये जो कैल्शियम है वो ये जो कैल्शियम है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएंगे. जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तुरंत ये स्टेप होगा, एट द सेम टाइम मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन गेट ओपन.
यानी यहां पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट था वो मास्क था, यहां पर ओपन हो जाएगा। जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन होगा, एटीपी हाइड्रोलेज एंजाइम एक्टिवेट होगा एटीपीएस, और वो एटीपी को ब्रेक डाउन करके एडीपी प्लस पीआई बना देगा, और वो क्या करेगा, मायोसिन हेड को एक्टिन के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा। जैसे ही बाइंड हो जाएगा, फिर क्या होगा, जो मायोसिन हेड है वो पुश करेगा एक्टिन को सेंटर की तरफ, और दोनों एक्टिन जो फिलामेंट है वो सेंटर में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, दोनों एक्टिन फिलामेंट धीरे धीरे नजदीक आते जाएंगे और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा बेटा, अगेन एटीपी सिंथेसाइज होगा, अगेन वापस एटीपी बना तो क्या होगा, मायोसिन का हेड जो एक्टिन से निकल जाएगा और वापस मास्किंग हो जाएगा के, यानी ट्रोपोमायोसिन वापस उसको बंद कर देगा और मसल्स वापस अपनी जगह रिलैक्स हो जाएंगे। क्लियर? अब यहां पर मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूं वन बाय वन। देखिए यहां पर क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, ये जो ब्लैक कलर के है दैट इज एक्टिन फिलामेंट, ये जो ब्लैक कलर के है दैट इज एक्टिन फिलामेंट के। अब ये एक्टिन फिलामेंट में देखो यहां पर मैं रेड कलर से बता रहा हूं दैट इज मायोसिन बाइंडिंग साइट, पर अभी रेस्टिंग कंडीशन में मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ट्रोपोमायोसिन ने छुपा दिए है, यानी मास्क कर दिए है। अब क्या होगा बेटा कि एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और यहां पर क्या होगा, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड होगा। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ, देखो यहां पर मैं बता देता हूं, कैल्शियम बाइंड हुआ तुरंत क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर का ट्रोपोमायोसिन था उसने अपनी जगह चेंज कर ली, यहां थे यहां से निकल गए, तो यहां जो बाइंडिंग साइट था मायोसिन का वो ओपन हो गया। अब एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ यानी एनर्जी रिलीज हुआ, तो क्या हुआ, ये मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ बाइंड हो गया। अब मायोसिन का हेड जब एक्टिन के साथ बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, अभी ये क्रॉस ब्रिज बना दिया। फिर उसने क्या किया, मायोसिन यहां से देखो, यहां सपोज सोचो कि मायोसिन है तो वो एक्टिन के साथ बाइंड हो गया, यहां से भी वो एक्टिन के साथ बाइंड हो गया, यहां से भी वो एक्टिन के साथ बाइंड हो गया, यहां से भी एक्टिन के साथ बाइंड हो गया। फिर उसने क्या किया, एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ प्रेस किया, पुश किया। अब जब वो सेंटर की तरफ पुश होगा तो धीरे 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 एक्टिन फिलामेंट नजदीक आते जाएंगे और आई बैंड जो है वो शॉर्टन होता जाएगा। आई बैंड क्या होगा बेटा, शॉर्टन होता जाएगा और मसल्स एक फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, फिर एटीपी वापस सिंथेसाइज होगा। जैसे ही एटीपी वापस सिंथेसाइज होगा तो मायोसिन हेड क्या होगा, एक्टिन से डिटैच हो जाएगा और ये जो ग्रीन कलर है ट्रोपोमायोसिन, उसने वापस मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या कर दिया, मास्क कर दिया। ऐसा होगा तो वापस मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटा। थैंक यू, मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।